ये जो नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका बताओ, किसी को पता हो तो? पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? वेरी गुड। सो नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is also known as Pascal distribution. And if the value of t is 1, then it is geometric distribution. सर ऊपर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा? ये सर नहीं दिख रहा ऊपर। I think now it is visible. ये सर अब दिख रहा है। यस सर। So negative binomial distribution is also known as Pascal distribution. एग्जाम में ना होना, कभी-कभी Pascal वर्ड यूज करने तो। और A equal to 1, A क्या होता है? Number of success. And if it is equal to 1, then this distribution is known as geometric distribution. Geometric distribution. ठीक है, चलिए राइट डाउन दी क्वेश्चन। देखिए, यूज द वन डिजिट नंबर्स, यूज द वन डिजिट नंबर्स 635, कॉमा लगा के लिखते जाएं, 635 799 462 791 580 762 062 407 138 524 to generate random observations, for each of the following simulations, for each of the following situations. So situation number first is throwing an unbiased coin. Throwing an unbiased coin. Second, throwing a dice. Throwing a dice. And third one, the color of a traffic light. The color of traffic light found by a driving car, found by a randomly arriving car, found by a randomly arriving car when green is 50% of the time, when green is 50% of the time, yellow is 10% of the time, and red is 40% of the time. Green is 50% of the time, and yellow is 10% of the time, and red is 40% of the time. So these are the three situations given. Okay, three situations are mentioned. So you have to find the random observation. तो सबसे पहले आप फर्स्ट केस का रैंडम ऑब्जर्वेशन करिए. Do it yourself.
Yes, Ankur Chauhan, can you explain what will be the methodology to solve first part? Sir, Yes, we are throwing an unbiased coin. yes, sir. The observation will be random. Either the head will come or the tail will come. Yes, sir. Either the head will come or the tail will come. So random numbers are given. You have to find the random observations. So how will you do this question? This part. You will assign the random numbers for the head part and you will assign the random numbers for the tail part. दोनों के लिए assign करोगे? Yes, sir. So after assigning the random number, you will generate the random number, or accordingly you will find that the outcome is head or the tail. No, sir. इस करिए इसको और first 10 observations बता दीजिए मुझे. What are the first 10 observations? एक कॉलम बनाइए रैंडम नंबर्स का, है ना? तो फर्स्ट 10 रैंडम नंबर्स क्या क्या गिवन है? जरा बोलिए प्रत्युष. 6 3 5 7 9 4 6 2 7. ये 10 हो गई. चलिए अगली 10 बोल दीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है. 9 1 5 8 0 7 6 2 0 6 2 4 0 7 1 3 8 5 2 4. Total how many random numbers are given in the question? 30. So 5 1 2 3 4 5, so is 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. एक और होनी चाहिए, कोई टूट रही है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 6 7. So 1 2 3 4 5 9 1 5 8 0 7 6 2 0 6 2. Okay, so it will be here, I think, है ना? यहाँ पे. It is यहाँ पे आएगा, ठीक है? So it is 30, है ना? 30 random numbers. So when the random number is 6, it will be head or it will be tail? हमें ये बताना. It will be head or it will be tail? तो हम जब probability उसको assign करेंगे, फिर उसके बाद 50%. Yes, so we have to assign the random numbers for the head part and for the tail part. अंकुर चौहान, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? Yes, sir. तो बताओ कैसे करेगा? 6 आने पे क्या आएगा? हेड आएगा, टेल आएगा? सर अगर हम हेड, हाँ बताइए. चलिए आप बताइए. सर जैसे अगर हम हेड को ऊपर निकालते हैं तो वो 50% होगा, तो उसके लिए नंबर होगा 0 to 4. ठीक है, तो जितनी भी 0 to 4 रैंडम नंबर्स होंगे उसके लिए हमारा हेड है. वेरी गुड. और फिर क्यूमुलेटिव अगर तो कुल मिला के हमें क्या करना है? असाइनमेंट ऑफ द रैंडम नंबर को करना है. असाइनमेंट ऑफ रैंडम नंबर्स. ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो, जब हम हमारी इवेंट क्या है? थ्रोइंग ए कॉइन, है ना? तो इवेंट के आउटपुट क्या आएंगे? या तो हेड आएगा या टेल आएगा. यही तो आउटपुट हो सकते हैं. अब हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अंकुर चौहान बताएं. What is the probability of head? What is the, किसी कॉइन को थ्रो करें, so what is the probability? 1/2. 1/2. So you can write here. What is the probability of tail? 1/2. 1/2 again. So it is P probability. Now calculate the cumulative probability. So cumulative probability will be given by 0.5 and here 0.51.
Now you are having the random numbers, single digit random number. You are working on single digit random number. So single digit random number can be 0, can be 1, can be 9. 0 से लेके 9 के बीच में वेरिएट करेंगे. तो total how many random numbers are there? सिंगल डिजिट रैंडम नंबर कितनी होती है काउंटिंग में? 10 होगी ना सर, 0 से 9. तो 10 में से 50% यहाँ अलॉट कर दो, 50% यहाँ अलॉट कर दो, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है. यदि प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती, सपोज यहाँ 0.4 होता है या 0.6 होता, तो हम 40% यहाँ अलॉट कर देते, 60% यहाँ अलॉट कर देते. ठीक है, अगर बाइस्ड होता तो अकॉर्डिंगली. तो यहाँ तो सेम है, तो 50% रैंडम नंबर यहाँ अलॉट करो, 50% यहाँ अलॉट करो. यस सर. तो अब आप यहाँ पे कौन सी वाली अलॉट करोगे? 0 से लेके कहां तक? 10 तक सर. नहीं, 0 से 10 तो सारी हैं, उनमें Okay. से आधी यहाँ करनी है, आधी यहाँ करनी है. ओके. ठीक है ना. 0 to 9 तक जो है यस सर. वो बड़ा आसान है, थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही तो है. यस सर. ये संख्या में कितनी है? 10 है टोटल, है ना. काउंटिंग इनकी कितनी है? 10. तो 10 का आधा कितना हुआ? 5. तो कोई भी 5 यहाँ लॉट कर दो और कोई भी 5 यहाँ लॉट कर दो अपने तरीके से. तो ज्यादा बढ़िया ये रहता है कि शुरू की 5 यहाँ तक हो जाएगा, 4 तक. शुरू की 5 तो अलॉट कर दो आप किसको? हेड के लिए. और बाद की 5 आप अलॉट कर दो टेल के लिए. तो ये टेल के लिए और ये हेड के लिए. ओके सर. ठीक है. तो शुरू की 5 आपने अलॉट कर दी 0 to 4, ठीक है, हेड के लिए. और फिर आपने अलॉट कर दिया 5 to 9 टेल के लिए. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बनाना आना चाहिए. अब आप देखो, आपको रैंडम नंबर कितनी दी है? पहली वाली 6. 6 आने का मतलब क्या है? हेड या टेल? सर टेल. हाँ, 6 आने का मतलब टेल है. यस है सर. ना. तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टी फॉर टेल. 6 का मतलब टेल. तो ये रैंडम ऑब्जर्वेशन है. दिस इज द रैंडम ऑब्जर्वेशन, है ना. तो जब आपसे ये पूछा जा रहा था कि 6 आने पे क्या आएगा, हेड या टेल, तो वो आपको इस टेबल से डिसाइड होगा, है ना. और ये टेबल आप बना पाएंगे जब भी आप इसको कर पाएंगे, है ना. तो चलिए अब हम सर इसमें आपको बना पाओगे. 3 आने पे क्या आएगा? 3 पर 3 पर सर आएगा. हेड आएगा. अब मैं एक एक करके पूछ रहा हूँ, जिससे पूछूं वही बताना, ठीक है. पार्टिसिपेंट लिस्ट में से मैं पूछ रहा हूँ. मोहिनी देवी बताएं 5 पे क्या आएगा? 5 पे टेल. 5 पे क्या आएगा? टेल. टेल. वेरी गुड. अंकुर चौहान 7 पे बताएं. 7 पे टेल. वेरी गुड. प्रत्युष सर 9 पे बताएं. टेल. 9 दोबारा आ गया, टेल. अब रोहित कुमार सिंह 4 पे बताएं. हेड. हेड. वेरी गुड. रोहित कुमार सिंह 6 पे बताइए. टेल. टेल. वेरी गुड. और 2 पे हेड. और 7 पे टेल. ये 10 मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी 30 आप कर सकते हो सेम वे में. तो रैंडम ऑब्जर्वेशन, किसी चीज के रैंडम ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हो. और इस वर्क की आपको जरूरत पड़ती है सिमुलेशन में एवरीवेयर. यू नीड दिस वर्क एवरीवेयर इन द सिमुलेशन. आइदर द प्रॉब्लम इज इन्वेंटरी प्रॉब्लम और आइदर द प्रॉब्लम इज क्यूइंग प्रॉब्लम, है ना, वेटिंग प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम में रैंडम नंबर की, आइदर द ड्रिंकिंग मैन प्रॉब्लम. सर इससे हम चेक क्या करेंगे? जैसे अगर हम हाँ, इससे हमें क्या पता चलेगा कॉइन बाइस्ड है या अनबाइस्ड है? नहीं वो तो आपको गिवन है. आपको ये पता चलेगा कि आप इस काम को अभी 30 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है. सर 300 टाइम्स कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है. तो 300 टाइम्स करने पर आपके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं. हाँ, रिजल्ट्स पता चलेंगे. और कोई ये प्रॉब्लम एक रैंडम नंबर का कंसेप्ट देने के लिए
दिस प्रॉब्लम कैन बी मैच विद सम इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम जिसमें सर देखिए, यहाँ भी अनसर्टेनिटी है ना, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सर इसमें जो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है 0.5 है, टेल की भी 0.5 है, तो जो रैंडम नंबर सेलेक्ट किया है 0 to 4, ये टेल में भी ले सकते हैं हम या फिक्स हाँ रहती है? यस यस ले सकते हैं। देखो आप ऐसा कर सकते थे कि यहाँ 5 to 9 ले लेते, यस सर। यहाँ पे 0 to 4 ले लेते, ऐसा कर सकते थे हम। दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। यदि हम इसको केवल 10 ऑब्जर्वेशन के लिए करें तो हम Yes. हमारे आंसर्स अलग हो जाएंगे। अब हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो हो जाएंगे। जाएगा। देखो जरा अपन आंसर्स खुद बना लेते हैं। ये तो हमारे आंसर हो गए पहले केस के हिसाब से, केस 1, और अब हम दूसरे केस के हिसाब से निकालते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो चलो बताओ अब 6 आने पे क्या आएगा? सर ये हेड आएगा। हेड आएगा। फिर 3 आने पे सर उल्टा हो जाएगा, बस इनका जो भी आएगा हेड आ जाएगा। हेड आ जाएगा। ये हेड हो जाएगा, 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 ये हेड हो जाएगा। कुछ ऐसा आएगा। यस सर। आप देखो कितने हेड थे कितने टेल थे टोटल इस वाले केस में? हाउ मेनी हेड हेड वन देगा, टेल वन देगा? सर 3 हेड है और टेल्स है। और इस वाले केस में तो इसका ऑपोजिट है। टी कितने और हेड कितने बताओ? सर टी हमारे 3 है और हेड हमारे टी 3 है, हेड सर 7। ठीक है, यस सर। हेड 7, राइट। अब आपने ये वर्क किया केवल कितने केस के लिए? 10 केस के लिए। आपके आंसर्स में बहुत वेरिएशन है। 30 के लिए और 30 के लिए वेरिएशन थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। सर हेड आ रहा है 40 और टेल आ रहा है 60। तो केवल 2 का फर्क है। अभी आपका डिफरेंस 4 का आ रहा है, 30 होने पे डिफरेंस 2 का आ रहा है। अब इस 30 को जब आप 300 करोगे तो केस 1 में और केस 2 में डिफरेंस रह नहीं जाएगा। हाँ, यही तो सिमुलेशन की खूबी है। When you do the problem for the long run, तो आपकी असाइनमेंट ऑफ द रैंडम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकुर चौहान, आप मेरी बात समझ पाए? समझ रहा हूँ सर। हाँ, हम असाइनमेंट रैंडम नंबर का असाइनमेंट किसी भी तरीके से कर रहे हैं, लॉन्ग रन के लिए हमारे रिजल्ट्स मैच करते हैं, है ना। पूरी 100% मैच नहीं करते, लेकिन 99.9% मैच करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे, केस 3 में आप ऐसा भी कर सकते थे, 0 to 4 की जगह आप ऐसे कर सकते थे 0 2 4 6 8। ये तो आप हेड के लिए असाइन कर देते, और इसके लिए आप कर देते 1 3 5 7 9। ये आपका केस 3 हो सकता था। अल्टरनेट यूज कर सकते हैं ना, एक छोटा। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते थे, रैंडम है। यस सर। आप ये भी कर सकते थे। अब इसके हिसाब से आप 10 का रिजल्ट निकालोगे यस तो सर। वेरिएशन आएगा, ठीक है। यस सर। लेकिन 30 के लिए करोगे वेरिएशन फिर कम हो जाएगा। 300 के लिए करोगे, तीनों केस लगभग सेम रिजल्ट दे रहे होंगे। यस सर। 300 के लिए तीनों रिजल्ट सेम केस दे रहे होंगे, और 3000 में तो बहुत ही एग्जैक्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। यस सर। मैंने 3 केस बताए, इसके अलावा भी कोई केस हो सकते हैं, ढेर सारे केस बनाए जा सकते हैं। 0 3 4 7 8, ये मैंने एक अलॉट कर दिया, 0 3 4 7 8, और बचे हुए इधर कर लिए 1 4 1 5 1 2 5 हाँ 9, सर ऐसे तो बहुत केस बनेंगे। और एक और आएगा 6। इस तरह से हम लिख सकते हैं, है ना। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई। हाँ अभी लिखा है क्लास में कहाँ पे ये जो अच्छा होगा तो नंबर देके भेजिए। हाँ भेजिए। हाँ बता बोलो। ये बता देगा नहीं, लेकिन जो डाटा रहेगा वो सर्विस में ये कम है। आप ऐसा करें, सेकंड एडिशन में कितने भेजे और फोर्थ एडिशन में कितने भेजे बॉस?
डीएनएल करके डाटा को डीएनएल डाटा को लिखा है। हाँ, तो उसमें सेकंड एडिशन में ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, मैं आप मैच कर लो, तो सेकंड में मटेरियल ज्यादा है। हाँ, अब दूसरा केस लेंगे। ये पहला केस क्लियर हो गया अंकुर चौहान, फर्स्ट केस इज क्लियर। यस सर। सेकंड केस, यस सर। तो व्हाट इज द सेकंड केस? यस सर। throwing a dice। अब डाइस कैसा है, बाइस्ड है या अनबाइस्ड है? कुछ लिखा नहीं सर ये नहीं लिखा, तो लिखा आप नहीं है। बाइस को अनबाइस्ड ही मानेंगे। क्या मानेंगे? अनबाइस्ड। तो नाउ द सेकंड केस, केस 2, throwing a dice। ठीक है, तो अब इसकी टेबल फिर बनेगी, आपको टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे आपने पहले कॉइन के केस में टेबल बनाई, तो कॉइन के आउटपुट क्या थे, हेड या टेल। अब यहाँ पे डाइस के आउटपुट क्या होंगे? डाइस के आउटपुट होंगे आइदर 1, आइदर 2, आइदर 3। डाइस के ऊपर क्या आने वाला है? आउटपुट। जैसे कॉइन पे हेड आना है, टेल 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 6 आउटपुट्स है ना। वहां पे 2 आउटपुट, कॉइन के केस में 2 आउटपुट है, हेड या टेल। लेकिन डाइस के केस में 6 आउटपुट्स हैं। 6 आउटपुट होंगे। यस सर। ठीक है, 6 आउटपुट्स हैं। यस सर। तो 6 आउटपुट्स के लिए आपकी टेबल कैसे बनेगी? देखो, आपकी टेबल ऐसे बनेगी। आप पहले तो देखो यहाँ आउटपुट, तो आउटपुट में जैसे आपने पहले हेड और टेल लिखा था, तो अब आप लिखो 1 2, या वैसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। ये तो आपके आउटपुट है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ? सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6, सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल। ठीक है, अब आपको इसकी कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 1 हो गई कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी। कम्युलेटिव के बाद आपको क्या करना है? असाइनमेंट ऑफ रैंडम नंबर्स। असाइनमेंट ऑफ रैंडम नंबर्स, असाइनमेंट ऑफ रैंडम। अब आपको असाइनमेंट ऑफ रैंडम नंबर करना है। अब ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि आपका असाइनमेंट रैंडम नंबर कितनी है? 9 नहीं 10 है। 0 से 9 ही है ना, 1 डिजिट की रैंडम नंबर 0 से 9 है, तो 10 है। अब 10 में से छठा हिस्सा इसको करना है। 10 का छठा हिस्सा कितना होगा? 10/6। कितना होगा? 10/6। 10/6 मतलब 1.666। तो ये तो पॉइंटों में आ गया है ना। तो एज ए सिमुलेशन इंजीनियर यू हैव टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, है ना। अब इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने में बड़ा आसान हो जाएगा कि यदि आप 10 रैंडम नंबर में से 6 रैंडम नंबर ले लें केवल, और 4 को नेग्लेक्ट कर दें। 4 रैंडम नंबर्स को आप क्या कर दें? नेग्लेक्ट कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें। कोई भी 6 रख लो आप, कोई भी 6 रख लो, ठीक है। और उस 6 में से 1/6 इसको अलॉट कर दो, तो 6 का 1/6 कितना होगा? 1। तो एक रैंडम नंबर इसको, एक रैंडम नंबर इसको, एक रैंडम नंबर इसको, एक रैंडम नंबर इसको, एक इसको और एक इसको। दिस इज वन वे। ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। दूसरा तरीका क्या है? बताओ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए आपने ले लिया 0 से 12 तक, आपने 2 डिजिट रैंडम नंबर ले ली 12, शुरू की 12, ठीक है। 1 डिजिट से नहीं कर रहे हैं, अब आप किससे कर रहे हैं? 2 डिजिट से। और 2 डिजिट आपने ले ली 0 से 12 तक, तो आपके पास 12 रैंडम नंबर है। हाँ 11 कर लें,
0 0 से 11, तो आपके पास 12 रैंडम नंबर है। अब उस 12 का 1/6 तो कितनी रैंडम नंबर हुई? 2। तो उन 12 में से कोई भी 2 आप यहां लॉट कर दो, यहां कर दो 2 2 यहां 2 यहां 2 यहां 2 यहां। दिस इज अनदर वे। अब मान लीजिए मैंने ले लिया 0 0 टू 17, कितनी रैंडम नंबर ले ली? 18। 18 का 1/6 18 18 का 1/6 3। तो 3 रैंडम नंबर यहाँ पर, 3 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 यहाँ पर। दिस इज वन वे। ऐसे ही ढेरों सारे केस हो सकते हैं, ऐसे ही ढेरों सारे केस हो सकते हैं। अब आप ये बताओ कि किस केस में ज्यादा रैंडमनेस पिक हो रही है? कंपैरेटिवली 3 वाले में ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू 2। यदि आप 2 रैंडम नंबर दे रहे हो और 3 रैंडम नंबर दे रहे हो तो 3 में ज्यादा रैंडमनेस पिक हो रही है, 2 में उससे कम है, 1 में उससे भी कम है, तो रिजल्ट्स में एक्यूरेसी कम मिलेगी व्हेन यू असाइन सम रेंज ऑफ रैंडम नंबर। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको ले लूं 0 0 से 96 तक, 95 तक, है ना? कितने हुई? 95। अब 96 रैंडम नंबर हो गई। अब 96 का 1/6 क्या हुआ? 16 16 चक्के 96, 16 चक्के 96, 16 हो गई ना? So I will allot 16 random numbers here, 16 here, 16 here, 16 here, 16 here. So your accuracy is further increased, है ना? So you have to decide what set of random numbers is suitable as per the requirement of the problem. As per the requirement of the problem. But here you are bound to use only the single digit numbers. क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन में आपको छूट दे रखी है कि आप 2 डिजिट रैंडम नंबर यूज कर सकते हैं? इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 1 डिजिट रैंडम नंबर ही यूज करनी है, तो यू आर बाउंड। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास रैंडम नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं से काम चलाना है, इन्हीं से काम चलाना है। यू आर बाउंड फॉर दैट। तो इन्हीं से काम चलाने के लिए इनकी टोटल संख्या कितनी है? 10। 10 का 1/6 हो नहीं सकता, 10 का 1/6 हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे? इनमें से कोई भी 4 रिमूव कर दो। मान लीजिए मैंने 9 रिमूव कर दिया, 8 रिमूव कर दिया, 7 रिमूव कर दिया, 6 रिमूव कर दिया। आई हैव रिमूव्ड एनी 4। तो बची हुई रैंडम नंबर क्या हुई? 0 1 2 3 4 5, यही तो रही केवल। अब इनकी संख्या कितनी है? 6। 6 का 1/6 यहां लॉट करो, तो 6 का 1/6 कितना होगा? एक रैंडम नंबर। तो पहली रैंडम नंबर यहां लॉट कर दो 0 को, दूसरी को यहां लॉट कर दो, है ना? then 2 then 3 then 4 then 5। हाँ जी बताइए अंकुर चौहान, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मोहिनी देवी, इज इट क्लियर टू यू असाइनमेंट ऑफ द रैंडम? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो हमने ये अलॉटमेंट करी। तो यदि हम डाइस को थ्रो करेंगे और थ्रो करने पे हमको आउटकम चाहिए, तो मान लीजिए रैंडम नंबर 2 आई, तो इसका मतलब डाइस पे क्या आने वाला है? 3। यदि रैंडम नंबर 5 आई, इसका मतलब डाइस पे क्या आने वाला है? 6। अब हम रैंडम ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए अब रैंडम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। वही 10 केस के लिए बना लेते हैं, बाकी फिर आप कर लेना। तो जरा रैंडम नंबर बोल देना फिर से। 6 3 5 7 9 9 4 6 2 7 हो गई 10। बस 10 का दिखा देते हैं करके, फिर उसी तरह से आप कर लेंगे। तो देखो पहली रैंडम नंबर कितनी आई? 6। 6 आपने कहां लॉट की है? बताओ कहीं की है? आपने तो की नहीं है ना? आपने तो की नहीं है, लेकिन ये हमने रिमूव कर दी थी। ये हमने क्या कर दी थी? रिमूव कर दी थी, है ना? लिमिट ये तो अब हमारे में आएगी नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही रिमूव कर चुके हैं इसे।
तो ये केस हमारे में आएगा ही नहीं। अब दूसरी रैंडम नंबर क्या है 3, तो 3 का मतलब क्या है 4, तो 3 का जो आउटकम है वो 4 आएगा। अब हमारा फर्स्ट आउटकम 4 होगा, हमारे केस में ये तो आएंगे ही नहीं। तो देखो 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, ये सब रिमूव हो गए। हमारे केस में जो नंबर आएंगी वो इस तरह से आएंगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 4 आएगी, 2 आएगी, इस तरह से आएगी। तो 3 आने पे डाइस पे क्या क्या आएगा, डाइस का ऑब्जर्वेशन, डाइस ऑब्जर्वेशन, डाइस पे आएगा 4, 5 आने पे क्या आएगा 6, 7 तो खत्म हो गया, 4 पे 5, 2 पे 3, ठीक है। और बोल दो जरा आगे के नंबर 5 और 9, हाँ 1 5 8 0, बस काफी है। अब देखो 9 रिमूव हो गया, 8 रिमूव हो गया, 1 आने पे क्या आएगा 2, 5 आने पे 0 आने पे 1। इसी तरह से आप पूरा 30 तक, है ना। तो मैं जरा सा आंसर मैच कर लो, मैं बता दूं। पहले तो आप कॉइन के आंसर मैच करो, है ना। कॉइन वाले के आंसर है ना आपके पास, तो देखो THT आप यस बोलते जाना है, हो गया तक। फिर TTT, HTH, TTH, TTH अगेन, TTH अगेन, HTH, HHT, HHT, THH। ये 30 का मैंने फर्स्ट केस का आंसर बता दिया। अब आप सेकंड केस का आंसर देखिए, है ना। तो 1 पहले इसमें आया 1, तो हमारे 1 है क्या, है ना। अच्छा, इसने ये काउंट कर दिया है कि इसने काउंटिंग दे दी है, वो आउटपुट नहीं दिया है इसने कुछ आंसर में, इसने काउंटिंग दे दी है कि 1 इतने बार आएगा और वो इतने बार आएगा। हाँ, वो काउंटिंग करके आंसर दे दिया है ना। हाँ, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आप, और इसने देखो यही बात इसने लिखी भी होगी, जरा ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ए डाइस हैज 6 फेसेस, 6 फेस होते हैं, एंड ईच फेस हैज सेम चांस ऑफ कमिंग अप, इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1/6, हर एक की इक्वल है। आउट ऑफ गिवन 1 डिजिट रैंडम नंबर्स, आउट ऑफ गिवन 1 डिजिट रैंडम नंबर्स, टोटल कितनी है 10। लेट अस यूज द नंबर्स 1 2 3 4 5 6, इन्होंने यूज किया है 1 2 3 4 5 6, अब हमने यूज किया है 0 to 5, 0 to 5, 0 to 5, ठीक है, हमने ये यूज किया है, राइट। लेकिन इन्होंने यूज किया है 1 to 6, तो बात एक ही है, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द 6 फेसेस ऑफ द डाइस, सही है, वही किया है। एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग, तो जो रिमेनिंग हमने काट किए थे वो रिजेक्ट। तो इस तरह से भी आप अपना कंसेप्ट लगा सकते हैं, हमेशा पॉइंट में मत काम करिए। अब 10 डिजिट नंबर है, उनका 1 हो नहीं सकता है, तो उसको मत करिए, है ना, तो वो सही है, राइट। तो सेकंड केस इज क्लियर, नाउ कम टू द थर्ड केस। अब थर्ड केस में क्या है, ट्रैफिक लाइट, ठीक है, ट्रैफिक लाइट प्रॉब्लम है। अब उसमें ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो ट्रैफिक लाइट में कितने आउटकम है बताओ जरा, हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, 3 outcomes, हाँ नमस्कार, हाँ क्लास बोलिए क्लास। तो हो गया सर टाइम, बस 1 मिनट और, ठीक है। So in the traffic light problem, what are the outcomes? Outcomes are green, yellow, and red. So what are the probabilities? 50%, 50%, 0.5 for yellow, 10%, 0.1, 0.4, 0.4. What are the cumulative probabilities? 0.5, 0.50, 0.5 मान लो, 0.6 and 1. ठीक है। अब देखो, how many random numbers are you are having? 1 digit random numbers? 10,
10. Out of 10, you have to allot 50% for first case. So 50% for first case means 0, 1, 2, 3, and 4. You can allot. So this is the column for the assignment of the random numbers. Clear? Now for yellow, you have to allot only one random number. So we are allotting only 5. For the red, you have to allot 40% means 6, 7, 8, and 9. Clear हो गया? अब आपको फिर वही रैंडम नंबर वाली टेबल आप बना लेंगे। तो बताइए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट। अब इसके रैंडम ऑब्जर्वेशन तो निकाल सकते हैं। जैसे कि पहली रैंडम नंबर क्या है 6, दूसरी क्या है 3 और उसके बाद 5 बस मैं 3 का करके बता देता हूं, बाकी आप समझना। सो इफ द रैंडम नंबर इज 6, so it means the color of the traffic light will be red. If 3, then color is green. If 5, then color is येलो। बस इसी तरह करते हैं। तो ये करके मुझे व्हाट्सएप कर दोगे? ओके, चलिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो सर। थैंक यू। थैंक यू।